देखो जरा कंटिन्यू करो। Generally the wire is divided into pieces of 1 meter length. Generally the wire is divided into pieces of 1 meter length, into pieces of 1 meter length, pieces of 1 meter length, placed parallel to each other, placed parallel to each other along a meter scale, placed parallel to each other along a meter scale of length 1 meter, along a meter scale, ठीक है, meter scale fixed on a meter scale fixed on a wooden board, fixed on a wooden board, okay, fixed on a wooden board. आगे fixed on a wooden board. अरे तुमने क्या लिखा है? Why जो क्या थे? The pieces are joined in of 1 meter length placed parallel to each other along a meter scale fixed on a wooden board. एक मिनट, ये ना parallel to each other नहीं है, इसमें है placed parallel to each other in series connection by using metal strips. ये चीज correct लेना, parallel to each other in series connection by using metal strips. ऐसे कर लेना, series connection by using metal strips. रखे तो parallel है but हैं ये series में, ठीक है. Placed parallel to each other in series combination या series connection by using metal strips. ये metal strips यूज करके सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है ना. ये चीज चलना, अदरवाइज वो पैरेलल में कंफ्यूजन ना हो जाए. मेटल स्ट्रिप्स के बाद क्या होगा फिर? मेटल स्ट्रिप्स, बस ये तो है. So फिर along a meter scale fixed on a wooden board वो नहीं लिखना. वो ठीक है, वो पूरा कंटिन्यूड रहेगा. पर जहाँ पे लिखा है ना प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, वहाँ पे लिखा है इन सीरीज कनेक्शन बाय यूजिंग मेटल स्ट्रिप्स. दैट्स इट. तो उसमें इतना ऐड करना और कुछ नहीं. ओके, यस सर, राइट. तो ये हमारा डन हो गया. इसके बाद लास्ट एक आध लाइन है, लिखना. हाँ, तो the ends of the wire are connected to a strong battery. The ends of the wire are connected to a strong battery, comma, a key K, a plug key या key जो है key K and a rheostat RH, ये and a rheostat RH. Okay, rheostat RH. Is it done? yes sir. Okay, this is it. इसके बाद आगे लिखना, बस दिस इज इट. ये हमारा इसका हो गया. बाकी जो हम कनेक्शन वर्किंग है उसमें लिख लेंगे जब अलग अलग पार्ट्स में आएंगे. डायग्राम बना लो और उसके बाद वर्किंग में लिखते हैं. ठीक है, मेक अ डायग्राम. तो इसके बाद वर्किंग डाल देना, हेडिंग वर्किंग. एक मिनट, सॉरी, प्रिंसिपल रह गया है, जरा प्रिंसिपल और लिख लो, फिर वर्किंग करेंगे. पहले लिखना प्रिंसिपल. The basic principle of potentiometer is that when a constant current flows through a wire, of uniform cross-sectional area
through a wire of uniform cross-sectional area and composition, uniform cross-sectional area and composition, the potential drop across any length of the wire, the potential difference across any length of the wire, सर एंड कॉम्पोजिशन के बाद क्या बोला आपने? and composition, comma, the potential drop across any length of the wire, potential drop across any length of the wire, across any length of the wire, any length of the wire is directly proportional to that length, is directly proportional to that length, directly proportional to that length. Okay, directly proportional to that length. Yes, sir. Okay, this is it. अब ये समझो जरा क्या होता है, समझो V is equals to क्या होता है हमारा, V is equals to IR होता है. तो V is equals to what is R over here, R क्या होता है अपना rho L by A. अब क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, I rho upon A into L. तो अगर मटेरियल सेम है, करंट कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई ना. सो हम बोलेंगे हियर फॉर यूनिफॉर्म करंट, फॉर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फॉर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कांस्टेंट करंट and uniform composition, uniform composition मतलब कि मटेरियल पूरे वायर का एक ही है. देन इन दैट केस हमारा जो I, रो एंड A आर कांस्टेंट, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट हो गया. एंड व्हेन दिस इज कांस्टेंट, तो I रो अपॉन A, इसको हम एक नया कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट व्हिच इज नोटेड बाय phi. Phi is known as potential gradient over here. तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा V is equals to phi into L. Okay, V is equals to phi L हो गया. And here this phi is known as potential gradient. ठीक है, phi is known as potential gradient. तो इसको हम निकाल सकते हैं कि phi is equals to क्या आ जाएगा, V by L. This is it. नोट करो इसको. नेक्स्ट हेडिंग, वर्किंग या एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं उसको. वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसमें 3 आएगा, 3 एप्लीकेशन या 3 वर्किंग बोल सकते हैं. फर्स्ट लिखना, measuring the EMF of an unknown cell. Measuring the EMF of measurement of the EMF of an unknown cell. तो एक अननोन सेल का EMF मेजर करने का डायग्राम तो यही है जो बना हुआ है. दिस इज आवर E एंड दिस इज द की, ये G हो गया गैल्वेनोमीटर. तो डायग्राम सब तो ये रहेगा. ठीक है, तो इसमें लिखना द अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, सॉरी अननोन रेजिस्टेंस नहीं, द सेल ऑफ अननोन EMF is connected in such a way that its positive terminal is attached to the point A. ये वाला point A है वायर का, ये वाला B है, ये लिख लेना डायग्राम के अंदर. Its positive terminal is attached to point A and negative terminal is connected to a jockey through a galvanometer and a key. And the negative terminal is connected to a jockey through a galvanometer and a key. To a jockey connected through a galvanometer and a key. Is it done? Done, everyone? Yes, sir. Okay. So this is it. So now when the keys are switched on
and jockey is slide when the keys are switched on, and jockey is slide over when the key is switched on, and the jockey is slide over, and the jockey is slide over the potentiometer wire. Jockey is slide over the potentiometer wire, over the potentiometer wire, and suppose null point is obtained at a length L from A. Null point is obtained at a length L from A. At a length L from A, then देखो भाई ये बात समझना हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पर। ये जो पॉइंट ए और इस नल पॉइंट के बीच में जो वायर है, इस वायर के अक्रॉस कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस वायर का रेजिस्टेंस है और इसमें करंट भी है, तो यहाँ इस वायर का यहाँ से यहाँ के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी पोलैरिटी अपोजिट है इस सेल के। यहाँ पे ध्यान से देखो, पॉजिटिव व्हेन कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो पोलैरिटी कैसी होती है, रिवर्स पोलैरिटी बोलेंगे ना इसको। तो यानी कि जो पोलैरिटी ऑफ पोटेंशियल यहाँ का है उसके अपोजिट पोलैरिटी ऑफ पोटेंशियल ये है। तो जब इक्वल वैल्यू के और अपोजिट पोलैरिटी के दो पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट होते हैं तो उससे उस सर्किट में हमारा जो करंट है वो जीरो हो जाता है ना। वही चीज प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। ओके, तो यहाँ पे लिखना द EMF of the cell is then given by the EMF of the cell is then given by the potential difference इस वाले null point वाले point का नाम दे दो O, potential difference across the wire segment AO, potential difference across the wire segment AO। तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा हमारा phi into L, सिंपल। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या था देखा था ना, V इज इक्वल टू phi L होता है। तो यहाँ पर L कौन सा आएगा, L ये वाली लेंथ आएगी। गॉट इट। तो ये हमारा बन गया E इज इक्वल टू phi L। ये तो हो गया तब जब अननोन ईएमएफ निकालना है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रुक जाओ यार, मैं बिल्कुल ही मतलब छुट्टी भागने का मन पड़ता है। सर अभी 2 वर्किंग बची है ना, कर लो। क्या सर अभी 2 वर्किंग बची है ना। हाँ सर वो आज पूरी करा दो। नेक्स्ट लिखो, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। ये तो हो गया हमारा ये तो हो गया एप्लीकेशन नंबर 1। एप्लीकेशन या वर्किंग नंबर 2 जो भी है दोनों लिख लो। तो दैट इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। सेकंड है हमारा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है। अब देखो, जब हमको कंपेयर करना है सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर कुछ हमारे चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस क्या हैं, यहाँ पर हम दो सेल्स को इस बार कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो हियर 2 सेल्स आर कनेक्टेड, एक ये हो गया एक ये हो गया। पोलैरिटी वही रहेगी, दिस इज द पोलैरिटी। एक बट हमने की यहाँ पे लगा दी और एक की यहाँ पर लगा दी। आफ्टर दैट यहाँ पर हमने एक लगाया रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए लगाया है ताकि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें बहुत एक्सेसिव करंट ना चला जाए, अदरवाइज वो डैमेज हो जाएगा। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन डू इट। ये हमारा E1 है, ये E2 है, ये की K1 है और ये की K2 है। जब K1 को क्लोज करेंगे, K2 को ओपन रखेंगे, तो हमको E1 इज इक्वल टू phi L1 मिल जाएगा। जब K2 को क्लोज करेंगे, K1 को ओपन रखेंगे, तो E2 इज इक्वल टू phi L2 मिल जाएगा। एंड देन सिंपली वी विल फाइंड आउट द रेशियो। तो ये डायग्राम कंप्लीट कर लो अपना जरा। ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर सेकंड एप्लीकेशन। देखना है इसमें the two cells E1 and E2, the two cells E1 and E2, which are to be compared
are connected across the potentiometer in such a way that their positive terminals are connected to the end A, END wala, end A of the potentiometer wire, and their negative terminals are connected to a high resistance box, a galvanometer, Resistance. high resistance box, a galvanometer, and a jockey with the keys K1 and K2, ठीक है, keys K1 and K2 in their individual branches of wire, okay, done. Individual branches of wire. हो गया? Yes, sir. ओके, तो ये इस तरह से, ये तो हो गया सर्किट में कैसे इसको हम कनेक्ट करते हैं. तो आगे लिखना फिर पॉइंट वाइज, दो तरह से पॉइंट आएगा. तो हम बोलेंगे पॉइंट नंबर 1, व्हेन द की K1 is closed and K2 is open, जब की K1 क्लोज होगी और K2 is open, then the cell of EMF E1 is in the circuit. E1 is connected in the circuit. Okay. And if null point is found at L1, तो हम बोलेंगे E1 हो गया हमारा phi L1. This is equation number 1. Okay, करो. This is equation number 1. नोट करो इसको. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब इसी के अंदर हम क्या कर देंगे, when the key K2 is closed and K1 is closed and यहाँ पे and K1 is open, then the cell EMF E2 is in the circuit. Continuous null point is found at L2, तो हमारा E2 हो जाएगा phi L2. Okay. So Sir, ये second divide point है? equation, हाँ, divide equation 1/2 कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा E1 upon E2 is equals to L1 upon L2.
That's how we compare them. एक लास्ट एप्लीकेशन रह गया है, that is measurement of internal resistance, that we will do in next class. ठीक है भाई? तो सैटरडे को सेकंड इक्वेशन कौन सी थी? सेकंड इक्वेशन ये बनी है ना, अच्छा ये सेकंड बना लो इसको, ये E1 is equals to phi L1 हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है, E2 is equals to phi L2 सेकंड इक्वेशन है, ये हो गया, ठीक है, कर लो इसको।